आइए शुरू करते हैं। The Companies Act 2013. Section 1 talks about the basics and its applicability. It extends to the whole of India, including the states of Jammu and Kashmir. Section 2 Definitions. जैसे कि KMP 251 शगुन का लिफाफा निकला था 251 और अपना फेवरेट रिलेटिव्स मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार. Section 3 Minimum required of a members in a OPC 1, Private Company 2, Public Company 7. Section 3A Amendment. If the limit falls, existing members have a time of 6 months for increase the limit. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो इन 6 महीने में जो भी लाइबिलिटी इंकर्ड होगी उसके लिए वो लाइबल होंगे severally और jointly. So, Section 4 Companies Act मतलब MOA and provisions for name clause. Like, company cannot take the name of an existing company, it should not indicate any government patronage, it should not infringe any trademark, और कंपनी का नाम उसके ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए. If the company changes its object, it should change its name within 6 months. अगर कोई कंपनी बंद हो गई है तो उसका नाम आफ्टर 2 years लिया जा सकता है, लेकिन इफ अ कंपनी स्ट्राइक ऑफ अंडर सेक्शन 248 तो उसका नाम आफ्टर 20 years लिया जा सकता है. एंड अदर सो प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर नेम क्लॉज. Section 5 Articles of Association. Articles are the rules and regulations of the company. It cannot bind the company for pre-incorporation contracts and remuneration to partner. It also covers provision for entrenchment, which means to make something more strict and to protect something. It is very easy but important. Section 6 of the Companies Act 2013. All the clauses mentioned in the Memorandum of Association of the company and all the rules and regulations mentioned in the Articles of Association must be in compliance with the Companies Act 2013. And the Memorandum of Association overrides the Articles of Association of the company, which give rise to the following sequence. That is Act, Memorandum of Association and the Articles of Association. Section 7 Incorporation of a company. For incorporation of a company, an application is filed with the registrar within the registrar office of a company along with the prescribed fees. So, for this purpose, we have to submit certain documents. First, TSC and DIN. TSC मिलता है local authorities से and DIN the form number DIR 3. Second, name suggested. Third, prepare MOA and AOA. इसके बाद ROC scrutinize the forms. अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं निकलता है तो क्या उसके बाद मनाइए बल्ले 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 मुंह मीठा करिए, आपकी कंपनी हो चुकी है इनकॉर्पोरेट. इसके बाद हमें मिलता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कंपनी. सो Now comes to Section 8. Section 8 talks about Section 8 companies. Companies with charitable objectives. Section 8 company कभी भी profit motive के लिए वर्क नहीं करती है. They even cannot distribute its profits to its promoters. जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसे इन्वेस्ट करेगी फॉर सेम पर्पज. फॉर इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8 कंपनीज रिक्वायर्स अ COI, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम ROC एंड लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. और अगर सेक्शन 8 कंपनीज के प्रोविजन से कंडीशंस के अगेंस्ट आती है तो सेक्शन 8 कंपनी हो जाएगी कॉ बोले तो कन्वर्ट, अमेलगमेट, वाइंड अप. सेक्शन 9 यानी कि इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है. उसके बाद कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, एक्वायर कर सकती है. कंपनी अब अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है और कंपनी कैन बी स्यूड एंड बी स्यूड बाय अदर्स. Section 10 Binding forces of memorandum and articles. कंपनी और मेंबर्स एक दूसरे को बाइंड करते हैं बाय एस्टॉपल एज टू टाइटल एंड पेमेंट. कंपनी और आउटसाइडर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है. मेंबर्स और मेंबर्स एक दूसरे को इंटर से बाइंड नहीं करते. सेक्शन 10A सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बाय ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट ऑफ नवंबर 2018 इट इज नाउ मैंडेटरी for all the companies to apply for the certificate within 180 days of incorporation by sending form 20A. Section 12
Every company needs to be registered within 30 days from INC 22. If the company is incorporated from SPICE, then INC 20A will be sent to ROC. If the company is not incorporated from SPICE, then two forms will be submitted, that is INC 22 and INC 20A. Every communication and notices will be sent to registered office. ROC will verify it within 30 days. और रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर क्या लिखा जाना चाहिए? नेम, एड्रेस. अगर 2 साल में कोई भी चेंजेस हुए नेम के अंदर तो फॉर्मर नेम और न्यू नेम दोनों ही लिखे जाएंगे. और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ का लिखा जाना चाहिए? लेटर पेपर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड एक्स्ट्रा. सेक्शन 13 डील करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ द एमओडी. इसमें हम 2 तरीके के ऑल्ट्रेशन डील करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेम क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेम क्लॉज, कोई भी कंपनी अपना नेम क्लॉज ऑल्टर कर सकती है. उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और नोटिस फर्निश करना पड़ेगा आरओसी को विदिन 30 डेज. आरओसी उस नोटिस को रजिस्टर करेगी और न्यू सर्टिफिकेट इश्यू करेगी. ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस, एनी कंपनी जिसने कोई भी अमाउंट रेज किया है प्रोस्पेक्टस से एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, वो अपना ऑब्जेक्ट लॉस ऑल्टर नहीं कर सकती जब तक वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास न कर दे. उस रिजोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन पब्लिश न करते 2 न्यूज़पेपर में, 1 इंग्लिश 1 वर्नैकुलर, और उसे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एग्जिट करने के लिए. सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए. एक्चुअली 2 पार्ट्स में बात करते हैं. जो पहला पार्ट कहता है जो ऑल्ट्रेशन होगा वो वैलिड होना चाहिए एज पर एक्ट एंड एमओए, और जो दूसरा पार्ट बात करता है कन्वर्जन, प्राइवेट इनटू पब्लिक, पब्लिक इनटू प्राइवेट, प्राइवेट इनटू पब्लिक. पीआर पास होता है, एसआर पास होता है, आरओसी को इन्फॉर्म करते हैं 30 डेज में, ऑल्टर होता है एओए. और साथ के साथ इसके इफेक्ट्स, मिनिमम मेंबर हमारे साथ हो जाएगी, मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट, पब्लिक इश्यू कर सकते हैं. बोले तो नेक्स्ट थिंग प्राइवेट, बीआर पास होगा, एसआर पास होगा, सीजी से परमिशन लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेंगे. और इसके इफेक्ट्स बोले तो मिनिमम मेंबर हमारे 2 जाएंगे, मैक्सिमम मेंबर 200, और पब्लिक इश्यू हम नहीं कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. Section 15. Alteration of memorandum or articles shall be noted in every copy. कंपनी कोई भी कॉपी एमओए और एओए की तब तक इशू नहीं करेगी जब तक उसमें ऑल्ट्रेशन नोट ना हो गया हो. एल्स पेनल्टी लगेगी कंपनी पर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर. कितनी? 1000 रुपीज फॉर एवरी अनऑर्डर्ड कॉपी ऑफ एमओए और एओए. सेक्शन 16 डिफाइंस रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम. मींस कोई भी कंपनी अपना नाम किस प्रकार रेक्टिफाई कर सकती है. जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी 2 कंपनियों का नाम सेम एंड सिमिलर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल लाइक पंछी एंड पक्षी. If the central government finds that the name is same and similar, then the central government orders to later registered company to rectify its name with, and such company can rectify its name within a period of 3 months. If the name is found same and similar to a registered trademark, then the proprietor of such registered trademark can make an application to central government within a period of 3 years of registration of such new company. If he fails to make application to central government, then he is like this. Bloody shit, man. If he successfully made application to central government, then he is like this. मुझसे पंगा ना लेना. And the company can rectify its name within a period of 6 months. The company shall submit a copy of passing ordinary resolution and order of rectification of name within 15 days to ROC. Thank you. सेक्शन 17 का सेक्शन मेंबर्स. इसमें आता है कि मेंबर्स कंपनी से क्या डिमांड कर सकते हैं. तो मेंबर्स कंपनी के पास जाके कॉपीज ऑफ एमओए, कॉपीज ऑफ एओए और कोई भी जो भी उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं. और कंपनीज विद इन 7 डेज ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी मेंबर्स को. और अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो ₹1000 पर डे एंड ₹1 लाख विच एवर इज लेस कंपनी को देना पड़ेगा. थैंक यू. सेक्शन 18 बोले तो ओपी से कह रहा है भाई मुझे तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, बट अब कैसे कर सकते हैं. इसके हैं 2. या तो अपनी मर्जी से विद इन 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट हो जाए, या फिर मैंडेटरी हो. इसमें भी होते हैं 2 तरीके. या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाए, और एंड स्मॉल कंपनी वाला, और एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 years एक्सीड कर जाए ₹2 करोड़. तुमको लगा मैं फ्लिप करेगी? मैं कोई बिग बॉस की शहनाज है क्या जो फ्लिप करेगी? सेक्शन 18 भी बाकी है रे, टेंशन नहीं लेने का, अपन समझाएगा ना. जैसा कि आप लोग अभी सुनकर आए कि सेक्शन 18 में ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक में जाने का अपन को क्या मांगता है, वैसे ही प्राइवेट टू ओपीसी में जाने के लिए अपन को 2 कंडीशंस फुलफिल करने का. पहली, उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए हो या उससे कम, एंड उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स शुड बी ₹2 करोड़ और लेस. इसके लिए अपन को एसआर पास करने का, एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स लेने का एंड INC 6 भेजने का.
Section 19. Section 19 involves one restriction, that is, a subsidiary company cannot hold shares in their holding company. However, there are 3 exceptions. Lot. Legal representatives can hold shares in case of a deceased member. Old or existing members can hold shares before holding subsidiary relationship, and trustees can hold shares on behalf of employees. सेक्शन 20 सर्विसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये बात करता है 5 तारीख को, चाहे कंपनी आरओसी स्टेक होल्डर्स को कोई डॉक्यूमेंट भेजे या फिर वो अपन की कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजे, 5 तरीके फॉलो होंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, डिलीवरी बाय हैंड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे कि अपना ईमेल। सेक्शन 21 बहुत छोटी सी बात करता है। ये बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कंपनी का हर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होना चाहिए। अब कौन करेगा ऑथेंटिकेट? या तो केएमपी करते या फिर कोई भी ऑफिसर कर दे हु इज ऑथराइज्ड बाय द बीओडी फॉर दिस पर्पस। सेक्शन 22 हमें बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट डीम कर लिया जाता है टू बी एक्सेप्टेड, ड्रॉन और एंडोर्स्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी। और अगर कंपनी कॉमन सील का यूज कर रही है फॉर इट्स ऑथराइजेशन, देन ऑथराइजेशन कैन बी डन बाय एनी मेंबर फॉर एनी स्पेसिफाइड मैटर। और अगर कॉमन सील का यूज नहीं हो रहा है तो ऑथराइजेशन 2 लोग कर सकते हैं, या तो 2 डायरेक्टर्स या फिर 1 डायरेक्टर 1 CS। बट माइने सेक्शन 23। बाबा रे बाबा, एक दूसरा सेक्शन मिला है अपन को। आपको पता है सेक्शन 23 का क्या मतलब होता है? नहीं पता? टेंशन लेने का नहीं। अपन किस लिए बैठा है? अपन बताते हैं सेक्शन 23 का क्या मतलब होता है। तो सेक्शन 23 डिफाइंस हाउ टू रेज इज सिक्योरिटीज इन द प्राइवेट कंपनी और इन द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में इशू करने के 2 तरीके होते हैं, बाय द वे ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय वे ऑफ द राइट शेयर्स और द बोनस शेयर्स। और पब्लिक कंपनी में इशू करने के 3 तरीके होते हैं, बाय द वे ऑफ द राइट शेयर्स और द बोनस शेयर्स, बाय द वे ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर हमें पब्लिक को इशू करनी है तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करके इशू कर सकते हैं। थैंक यू। सेक्शन 25 म्हणजे डीम प्रॉस्पेक्टस कंपनी है। इस कंपनी ने इसको अपनी शेयर दे दी जिससे कि आगे फॉरवर्ड कर सकते, इसको हम अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से ज्यादा हम जानते हैं। ये सारी के सारे जो इसके शेयर्स हैं वो सारे मार्केट में आके बेच देगी। और जो भी अगर ये डॉक्यूमेंट बनाएगी कोई भी इसके बिहाफ पे शेयर सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉस्पेक्टस, जो कि ओरिजिनल कंपनी के बिहाफ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम ये मानते हैं कि जो उस दिन जिस दिन हम सेल करें शेयर्स का, उस दिन हमें थोड़ा सा अमाउंट जो है मिल चुका है और थोड़ा बाकी रह गया है। और ये हम ये भी मानते हैं कि आगे आने वाले 6 महीनों में ये जितने भी सारे शेयर्स हैं ये सारे बिक जाएंगे। आगे मेरे भाई ऋषभ जैन समझाएंगे। सेक्शन 25। अभी तो मैं इसमें आपको 5 चीज़ें और बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऑल द रूल्स, लाइबिलिटीज़, इनेक्टमेंट जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस पे एप्लीकेबल होती हैं वो डीम प्रोस्पेक्टस पे भी एप्लीकेबल होंगी। द नेट अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन जो हमको रिसीव होगा इस सिक्योरिटीज़ को इशू करके वो हमें इसमें बताना पड़ेगा। और जिन पर्सन का नाम इस प्रोस्पेक्टस में लिख दिया जाएगा वो मान ली जाएंगे कि वो कंपनी के डायरेक्टर हैं। अगर डीम प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है कोई कंपनी तो उस पर कंपनी के 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। अगर डीम प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी फर्म के थ्रू तो उस पर एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर के साइन होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 26 हमें बताता है मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस। एक तो प्रोस्पेक्टस डेटेड और साइंड होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड पर्सन से, वो स्केरा या सेबीज एक्ट को कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो सेबी वाले बहुत मारेंगे उसे। और ये सारे प्रोविजंस, और हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं या जो हमारा नया इशू है वो फर्दर प्रीवियस इशू के सेम है बिल्कुल। 3rd पॉइंट से कि जो प्रोस्पेक्टस में डेट है वही हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी और हमें आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन पहुंचाना होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 26 फर्दर टॉक्स अबाउट एक्सपर्ट और कहता है आओ जी, बैठो जी और बैठे ही रहो जी। That is, statements made by an expert must be included in the prospectus only if he has been engaged for the same, has given written consent for the same, and has not withdrawn his consent before the filing of prospectus to the ROC. आगे कहते हैं all the compliances made by the company for the issue of the prospectus must be mentioned on the face of the prospectus. All the prospectus are valid for 90 days from the date of filing at the ROC. Penalties under section 26 include 50,000 to 3 lakh penalty for the company, 50,000 to 3 lakh penalty or 3 years of jail or both for the officer in default. सेक्शन 27 किसका है? वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस। वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? मतलब जो प्रोस्पेक्टस में मनी का यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है ना, हमें उसमें चेंजेस चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अप्लाई हो गया, लेकिन चेंजेस तो चाहिए, तो उसके लिए हमें 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली, बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ पास करा देना।
सेकेंड वाली न्यूज़पेपर में निकलवा देना। न्यूज़पेपर मतलब 2 न्यूज़पेपर में, पहला तो अंग्रेजी भाषा के में निकलवा देना, दूसरा वर्नाकुलर मतलब वर्नाकुलर में निकलवा देना। तीसरी, अगर कोई वेबसाइट है कंपनी की तो उस पर भी अपलोड मार दो ये वाली चीज़। और लास्ट, जो ज़्यादा मुंह चपट चलाए उसको बोलो ओके बाय, मतलब एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर। Section 28. Offer for the sale of securities. It is made by certain members who hold पर a lot shares in the company. ये जो मेंबर्स हैं ये कंपनी भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ये सारे मिलके ऑथराइज करते हैं कंपनी को एंड बीओडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे शेयर्स बिकवा दो। लाइक अब उनके पास बहुत शेयर्स है, थोड़े से बिकवा दो ना। एंड जो भी डॉक्यूमेंट बनता है फॉर द ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज उसे प्रोस्पेक्टस माना जाता है। एंड कंपनी जितने भी एक्सपेंसेस इंकर करती है वो सारे मेंबर्स को बियर करने पड़ते हैं। दैट्स इट। सेक्शन 29 बोले तो डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। शेयर सर्टिफिकेट्स अब नहीं इश्यू होते। हाँ, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो अभी भी शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू कर सकती हैं। पब्लिक कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनका पूरा काम ऑनलाइन फॉर्म में होता है डीमैट अकाउंट में। नेक्स्ट सेक्शन कि करवा कहां से आया पढ़ाई के बीच में। यही तो है हमारा सेक्शन 31। बोले तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली आर प्रोस्पेक्टस दैट इशू द सिक्योरिटी फॉर द सब्सक्रिप्शन विदाउट फाइलिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस। हमें नया प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट इट्स नॉट एक्सीडिंग 1 year, but as per the SEBI guideline it's 4. So 1/4 whichever comes earlier. If any certain changes occur while issuing for the security, they can maintain information memorandum. If anyone want to give advance payment for subscription, they can do so. If they want to withdraw the same, they also can do so. The company return the money within 15 days. बोले तो 15 दिन में वापस ना। रेड स्केच पेन ये कहाँ से आया? ओ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 32 इसमें प्राइस और क्वांटम दोनों ही मिसिंग होते हैं। फ्लोर प्राइस हमेशा दिया होता है, सीलिंग प्राइस कभी कभी दिया भी होता है, कभी नहीं भी दिया होता है। इन दोनों के डिफरेंस को प्राइस बैंड कहते हैं और आरओसी को 2 बार इन्फॉर्म किया जाता है। Section 33. Abridged prospectus. Bridge नहीं, abridged prospectus. Basically it is a summary of the main prospectus. इसके अंदर अलाइन फीचर्स आते हैं मेन प्रोस्पेक्टस के। अगर किसी पर्सन को पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए तो हम उसको पूरा प्रोस्पेक्टस दे देंगे। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच किया जाता है। 2 केसेस में इसकी नीड नहीं होती। जब यूपी वाले मांगे, यू मतलब अंडर कमीशन, पी अदर देन पब्लिक इशू, इसकी नीड नहीं होती। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो ₹50,000 की पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 447। कहाँ बच के जाएगा रे तू हमसे? तुझ पे तो हम सेक्शन 34 और सेक्शन 35 के तहत लाइबिलिटी लगाएंगे। तूने अपने शेयर होल्डर के साथ अच्छा नहीं किया ना, तुझ पे तो एक का हिसाब बाकी है। सेक्शन 34 इज ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सेक्शन 35 इज ऑफ सिविल लाइबिलिटी। जैसे कि नेम से समझ में आ ही रहा है, सिविल लाइबिलिटी मतलब छोटा मैटर और क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब बड़ा मैटर। इन क्रिमिनल लाइबिलिटी if prospect is untrue and misleading, section 447 will apply. On the other hand, in civil liability, if loss and damages occur, paid will be liable. Paid, promoter, expert and director will be held personally liable to pay the compensation. अगर 36 गलती करी तो 36 लाइबिलिटी भी लगेंगी। सेक्शन 36 अगर कोई भी पर्सन नोइंगली या अननोइंगली कुछ भी ऐसा होता है जो कि फॉल्स है या फिर मिसलीडिंग है, सामने वाले पर्सन को इंड्यूस करने के लिए कि वो एग्रीमेंट में एंटर करे फॉर सब्सक्राइब, एक्वायर, डिस्पोज ऑफ या फिर अंडर राइट करने के लिए सिक्योरिटी, या फिर कोई भी एग्रीमेंट जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके, या फिर कोई भी एग्रीमेंट जिससे वो क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कर सके फ्रॉम बाकी बोले तो ब्रोकर, एजेंट, बैंकर, अंडर राइट, वो लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 37 क्लास सूट्स एक्शन, ये हमें बताता है कि अगर किसी एक ग्रुप के सारे मेंबर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फिर वो एक एक करके तो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे नहीं, तो वो अपने ग्रुप में से एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं जो कि उन सारे मेंबर को रिप्रेजेंट करता है ट्रिब्यूनल के सामने। सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये कहता है कि कंपनी को मिनिमम 90% या सब्सक्रिप्शन को मिल जाना चाहिए। अगर बैंक भी कम रही है ना तो सब बता कर जाना है। दूसरा, एप्लीकेशन मनी 30 डेज रिसीव हो जाना चाहिए। अगर ना हो तो 15 दिन में रिफंड कर दो।
पर अगर अगले 15 दिन में फंड ना किया तो समझो सत्यानाश। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर डिफॉल्ट हैं, उन्हें 15% पर एनम की रेट से 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी परसेंटेज के साथ। समझ गए? अब तुम क्या कर रहे हो? चलो जाओ। सेक्शन 40 डील्स विद टू थिंग्स। फर्स्ट, कंपनीज के शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने चाहिए। सेकंड, जब भी कंपनी अपने शेयर्स अंडरराइटर के थ्रू अलॉट करती है तो दे हैव टू पे कमीशन। सो शेयर के केसेस में दे हैव टू पे 5% ऑफ इशू प्राइस और द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय एओ, बट इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो पे होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ डिवेंचर्स दे हैव टू पे 2.5% ऑफ इशू प्राइस और द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय एओ। So, Section 42 of Companies Act 2013 is of private placement, which tells companies to offer securities to identified persons by not issuing prospectus but offer letter. Identified persons cannot exceed 200 in a financial year, but they cannot include employees, QIBs and ESOP, and they do not have a right to renunciate. This money can only be used for two purposes. One is allotment, which is to be done in 60 days. And second is repayment, which is to be done in next 15 days. If company fails to do so, it has a charge of interest at the rate of 12% per annum. Only banking modes are acceptable, and if company does any kind of public advertisement, it will be considered as public. सेक्शन 43 वैसे तो ये सेक्शन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का है, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बट मेनली डील्स विद टू थिंग्स, इक्विटी शेयर्स विद ऑर्डिनरी राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सिर्फ दो कंपनी ऐसी है जिनने इस तरह की इक्विटी इशू की है, दैट इज टाटा एंड फ्यूचर रिटेल, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिबेंचर्स, लोन्स, इंटरेस्ट एक्रूड में, कंपनी पे कोई कोर्ट केस या पेनल्टी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और इसमें हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं 74%। 74% किसका? पोस्ट इशू शेयर कैपिटल का, एंड सो ऑन। सेक्शन 46 और ये बताता है शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में। अ शेयर सर्टिफिकेट इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन। अ शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन बाय या तो 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर और 1 CS। अ शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड इन डुप्लीकेट, फर्स्ट इफ द सर्टिफिकेट इज प्रूव्ड टू बी लॉस्ट और डैमेज्ड, सेकंड if the certificate is torn, mutilated, defaced and has been surrendered to the company. सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। मेंबर को कंपनी के डिसीजन कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? वोटिंग राइट्स चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे? ना, पर कुछ कुछ केसेस में मिलेंगे। कब कब मिले बाबा? जब उन्हें पिछले 2 सालों से डिविडेंड नहीं मिलेगा, जब उनके राइट से फिक्स हो रहे होंगे, तो कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा होगा। सेक्शन 48 वेरिएशन इन वोटिंग राइट्स। अगर किसी शेयर होल्डर्स की क्लास का वोटिंग राइट्स वेरी होता है तो उस शेयर होल्डर्स की क्लास का SR पास करवाना पड़ता है, और अगर उस वेरिएशन से किसी और क्लास का वोटिंग राइट्स इफेक्ट होता है तो उस क्लास का भी SR पास करवाना पड़ता है। It must be authorized by MOA as well as AOA. अगर 10% शेयर होल्डर डिसेंट करते हैं then they may go to the tribunal for the cancellation of variation within 21 days. सेक्शन 49 बोले तो कॉल्स इन अर्ली। इसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर से कॉल्स मंगाती है ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। सेक्शन 50 कॉल इन एडवांस बोले तो जब बिना कंपनी के मंगाए कोई शेयर होल्डर पैसा दे देता है तो वो कॉल इन एडवांस। इस पे एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स मिलेंगे? नहीं। एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा? नहीं। तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, वो भी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और ये इंटरेस्ट पक्का से मिलेगा बिकॉज इट्स द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Section 51 dividend. It is paid on nominal value of share, paid up value. सेक्शन 52 इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जो कहता है सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलो, ऑथराइजेशन ऑफ एओए नहीं चाहिए, एनी टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का पैसा 4 चीज़ों के लिए, BP हाई, BP लो, BP बोले तो बायबैक अंडर सेक्शन 68, टू पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 63 एंड टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सेक्शन 53 शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट मीन्स शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट।
It is applicable on all the companies. There are two exceptions. First, shares issued under debt restructuring scheme. Second one, sweat equity share, which is covered under Section 54. Section 54. It talks about issue of shares on discount on face value. ये उन लोगों को इशू किए थे कंपनी में एकदम मेहनत करते हैं जम के, मतलब वैल्यू एडिशन करते हैं कंपनी के लिए. बाकी इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है. SR पास कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू whom they are allotted, प्राइस पर शेयर एंड द लॉक इन पीरियड. इस सबको डिस्क्लोज कर दो. सेक्शन 55 रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. नॉर्मली कंपनियां 20 साल बाद करती हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 30 साल बाद करना होता है. फ्रॉम 21st ईयर वो 10% रिडेम्पशन करना शुरू कर देते हैं. फ्री रिजर्व्स, फ्रेश इशू और प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए. अगर फ्री रिजर्व्स और प्रॉफिट्स यूज करते हैं तो CRR बनता है नॉमिनल वैल्यू पे, और अगर प्रीमियम दे रहे हैं रिडेम्पशन पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है. सेक्शन 56. बस कुछ नहीं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करना है. ट्रांसफ़र डीड कोई भी भेज सकता है, चाहे ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसफ़र ही, विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन. और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर ट्रांसफ़र ही डीड देगा और उसके पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे, ये कंपनी उसे SH5 भेजे, और ट्रांसफ़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 14 डेज़ में रिप्लाई भेजे. नहीं तो फिर कंपनी उसे अपने आप ही रजिस्टर कर लेगी. सेक्शन 56. अभी बाकी है मेरे दोस्त. कंपनी को ट्रांसफर डीड को 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर ट्रांसफर डीड खो जाती है तो BOD चाहे तो ट्रांस बढ़ा भी सकता है. और ट्रांसफर डीड साइनिंग स्टैंपिंग गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो ज़रूरी ही नहीं है. और अगर कोई भी गलती हो जाती है सेक्शन 56 में तो पेनल्टी तो रहनी पड़ेगी, चाहे वो कंपनी हो चाहे ऑफिसर इन डिफॉल्ट. और अगर गलती डिपॉजिटरी से ही हो जाती है तो फिर उसके लिए सेक्शन 447 है. सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने खुद को फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए अगर ओनर बताया है किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी टाइप का बेनिफिट डिराइव करने के लिए, तो फिर क्या होगा? क्या किया, ये क्या किया, तूने तो पाप कर दिया, अब तो तुझे जेल में जाना पड़ेगा और साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा. Section 58. Section 58 talks about refusal to register, transfer और transmission of shares. अगर कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है रजिस्टर करने से, तो अग्रीव्ड पार्टी whether informed by the private company in 30 days or not informed in 60 days, या फिर पब्लिक कंपनी के केस में informed in 60 days and not informed in 90 days, ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है. और ट्रिब्यूनल ने तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनता. सो द कंपनी shall abide within 10 days, otherwise it will be penalized. In Section 59, ratification of register of members. Aggrieved parties, companies and members may appeal to the tribunal on the basis of 4 conditions. First is transfer name not removed in the register. Second is transfer name not entered in the register. Third is transfer name removed but delayed. Fourth is transfer name entered but delayed. ट्रिब्यूनल का जो भी फाइनल डिसीजन होगा विद इन 10 डेज कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. सेक्शन 61 बोले तो ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए OR पास करना करता है. व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एंड शेयर कैपिटल को चेंज करने के लिए 5 तरीके हैं. इंक्रीज बोले तो बढ़ाना, डिक्रीज बोले तो घटाना, बोले तो इधर से इधर पार्टी मारना, शेयर इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स इधर पार्टी मारना. उनको एकदम जोड़ देना, कंसोलिडेट कर देना, फिर दोनों को तोड़ देना, सब डिवाइड कर देना. सेक्शन 62 हमारा बात करता है राइट शेयर्स की. ये किसे दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. अब शेयर होल्डर की मर्जी वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या अनाउंस करे, यानी कि किसी और को दे दे. ये ऑफर खुला रहता है 15 दिन से 30 दिन के लिए. अगर तुम्हें कोई दिक्कत है 90% लोगों को इकट्ठा करो और इस ऑफर को ठीक करा लो. इसमें भेजा जाता है लू बोले तो लेटर ऑफ ऑफर. कितने दिन पहले? 3 दिन पहले. कैसे? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के 5 मेथड से. और हमारा सेक्शन 62 बात करता है ESOPs की. ESOPs किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉयज़ को. पब्लिक कंपनी में SR पास करके और प्राइवेट कंपनी में OR. क्या लगा रहे तुमको सेक्शन 62 खत्म? नहीं, सेक्शन 62 में हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कवर करते हैं. ये हम किसी को भी दे सकते हैं फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. आपके पास कैश है, आप हमको कैश दो.
कैश नहीं है, अपने को कुछ भी चलेगा। ऑल्सो सेक्शन 62 में बहुत सारे मिसलेनियस पॉइंट्स भी कवर होते हैं, जैसे वी नीड अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन ईच केस फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ऑल्सो अगर कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कंपनी कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास। परमात्मा कौन है? ट्रिब्यूनल। कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल और बाइंडिंग होगा और कंपनी को वो हर केस में मानना पड़ेगा। सेक्शन बोनस शेयर्स, बोलो तो फ्री के शेयर्स, फ्री के शेयर्स, फ्री के शेयर्स। ये शेयर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बट नो 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 नॉट फ्रॉम एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तभी दिए जाते हैं जब कोई भी डिफॉल्ट ना हो इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग लोन, वर्कमैन ड्यूज, ग्रेचुइटी एटसेट्रा। Section 64. It deals about notice to be sent to ROC regarding alteration of share capital. इसमें जो कंपनी होती है वो ROC को नोटिस भेजती है, वो भी शेयर कैपिटल के ऑल्ट्रेशन के रिगार्डिंग, और ये नोटिस जो भेजती है वो विद इन 30 डेज भेजती है, और ये फॉर्म नंबर SS7 के द्वारा भेजा जाता है और ऑर्डर्ड MOA भेजा जाता है रिगार्डिंग सेक्शन 61 जो कि हमारा डील करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल से, सेक्शन 62 जो कि हमारा डील करता है राइट शेयर से, और सेक्शन 55 जो कि हमारा डील करता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। Section 66. Reduction of share capital. It means no longer calling remaining money from shareholders anymore. ये देखा जाए तो एक नेगेटिव सेक्शन है। क्यों? इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट, कि कंपनी की कैपिटल इतनी ज़्यादा हो गई, उसके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है काम करने के लिए, तो वो पैसे ही नहीं मंगा रही शेयर होल्डर से। सेकेंड, मार्केट वैल्यू एसेट की घटती जा रही है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंपनी में बढ़ते जा रहे हैं। अब करें कैसे? इसके 2 तरीके। फर्स्ट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अमाउंट, कि मुझे बाकी का पैसा चाहिए ही नहीं तेरे से शेयर होल्डर, तो जा सकता है। सेकेंड, रिडक्शन इन अमाउंट, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा नहीं चाहिए। अब इस चीज़ को लॉफुली कैसे करें? एक BR पास कर दो, एक SR पास कर दो, दोनों को ट्रिब्यूनल पे भेज दो। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हमें पता है, परमात्मा का ऑर्डर फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, और फिर उसके बाद इन्फॉर्म ROC इन 30 डेज। सेक्शन 67. बाइंग ऑफ ओन शेयर्स। कंपनी को मना होता है कि वो अपने शेयर्स इशू के टाइम पे नहीं खरीद सकती, ना ही वो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है अपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनीज को। मतलब कुछ मतलब है इस बात का कि हम खुद ही के शेयर्स खुद ही खरीद रहे हैं, पर हमें उस टाइम पे बहुत लग रहा था। पर ठहरो, बात इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो जाएगी। इसके भी 4 एक्सेप्शंस हैं। पहला, कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स प्रोवाइड कर सकती है ट्रस्टीज को ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। सेकेंड, कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूडिंग KMPs, प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हुज अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन द 6 मंथ सैलरी। थर्ड, प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर्स खरीद सकती है, पर उसके भी कंडीशन है। फर्स्ट, इट्स बोरोइंग शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और उसने कुछ डिफॉल्ट ना करा हो रीपेमेंट में। फोर्थ, बैंकिंग कंपनी भी अपने शेयर्स खुद बाय कर सकती है। देखो सेक्शन 68 क्या कहता है? बायबैक। बायबैक क्या होता है? अपने शेयर्स मार्केट से वापस ले लो, और या फिर इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस कर दो। कैसे करोगे? जो पहले आए उसे पहले पैसा दे दो, नहीं तो टेंडर में की रेशियो में दे दो। अब कैसे बायबैक करोगे? ओपन मार्केट से कर लो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से कर लो, या ई-शॉप से कर लो। अब कहाँ से किस चीज को यूज करोगे आप? फ्री रिजर्व यूज कर लो, फ्रेश इशू कर लो आप, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर लो। अब ऑथराइजेशन AOA कर लो और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और शेयर वापस ले लो। कंटिन्यूशन, इसमें मैक्सिमम पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स हमारे होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25%। अगर 10% हम कर रहे हैं सिर्फ तो बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा, और 10-25% अगर हम कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों जाएंगे। डेट टू पेड अप कैपिटल आफ्टर बायबैक शुड बी 2:1। उसके बाद हमें कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजने पड़ेंगे और ROC पे रिटर्न जाएगा 30 डेज के अंदर। उसके बाद काफी सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं, 1 साल में, 27 डेज में, 7 डेज में और 6 मंथ्स में। सेक्शन 69 बात करता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में, जो हमको बनाना ही पड़ेगा जब भी हम बायबैक करेंगे घर के पैसे, यानी फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमारा नॉमिनल वैल्यू पे बनेगा जितने भी शेयर्स हम बायबैक करेंगे। सेक्शन 70, ये सेक्शन हमसे कहता है कि अगर कंपनी किसी तरीके का डिफॉल्ट करती है इन द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स और इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड इंटरेस्ट,
तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। कंपनी को बायबैक अलाउड ही नहीं है। अगर कंपनी अपने डिफॉल्ट्स को वेल एंड गुड कर देती है तब भी कंपनी आने वाले 3 साल तक कोई भी बायबैक नहीं कर सकती। कंपनी अपने सब्सिडीज के थ्रू और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू भी बायबैक नहीं कर सकती। सेक्शन 77 बोले तो चार्जेस इंडिया में बन सकते हैं, चार्जेस इंडिया के बाहर भी बन सकते हैं। चार्जेस किसी भी टेंजिबल एसेट पे भी बन सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट पे भी बन सकता है। 2 पार्टी में इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है कंपनी, दूसरी होता है चार्ज होल्डर। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो दोनों साइन करने पड़ते हैं, मतलब कि कंपनी को भी साइन करना जरूरी है और चार्ज होल्डर को भी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर जिस पे चार्ज बना है तो उस पर या तो किसी एक सीए का साइन, वो सीएस का साइन चल जाएगा, या फिर किसी डायरेक्टर का साइन चल जाएगा, या फिर कोई ऑथराइज पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द चार्ज होल्डर। ये साइन जो सर्टिफिकेट कॉपीज होती है चार्जेस की, उस पर अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, होली हो या पार्शियली हो, तो जो कॉपीज है उन पे कंपनी कॉमन सील होनी जरूरी है, या फिर सीएस या एक डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द चार्ज होल्डर वो जरूरी है, या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी अदर देन द चार्ज होल्डर जरूरी है। सेक्शन 77 बात करता है चार्जेस की। क्या चार्जेस रजिस्टर करना मैंडेटरी है? हाँ, चार्जेस रजिस्टर करना बिल्कुल मैंडेटरी है। चार्जेस कहाँ रजिस्टर होंगे? चार्जेस रजिस्टर होंगे आरओसी पे। क्या आरओसी इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह देगी? हाँ, कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों ही को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। क्या हर तरीके के चार्जेस रजिस्टर करना मैंडेटरी है? नहीं, कुछ चार्जेस हम कंसल्ट करके सीधी के साथ छोड़ भी सकते हैं। क्या अगर चार्जेस एडिशनल पीरियड में रजिस्टर होंगे तो उस पर कोई एडिशनल फीस लगेगी कि वही बेसिक फीस लगेगी? अगर हम चार्जेस एडिशनल पीरियड में सब्सिक्वेंट पीरियड में रजिस्टर करते हैं तो उस पर स्पेशल टैक्स की फीस लगेगी, जिसे हम एड वैलोरम फीस कहते हैं। क्या सूर्य ढंग से तो दे दे यार, 50 रुपए काटो यार उसकी ओवर एक्टिंग के। ये सेक्शन 78 ये बोलता कि चार्ज होल्डर को अपना चार्ज खुद रजिस्टर कराना है अगर कंपनी भूल गई कराने को। वैसे तो कंपनी को 14 दिन में करा देना था पहले इसका चार्ज रजिस्टर। अब आरओसी कॉल करेगी कंपनी को कि भैया तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमको इसका चार्ज रजिस्टर करने में। कंपनी ने ना बोल दिया तो आरओसी रजिस्टर करा दी। फिर भी अगर कंपनी को कोई टांग अड़ानी हुई तो वो सॉलिड रीजन देना पड़ेगा उसको आरओसी को कि चार्ज इसका रजिस्टर ना करो। ठीक है, तो मोहन चल लूडो खेलते हैं। सेक्शन 79 मॉडिफिकेशन, इट हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी पे रख रखी है और हमने उसको बेच दी है, सेल आउट कर दी है और चार्ज होल्डर को पता है, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि अब वो उसको रजिस्टर्ड कराएगी। और सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन है, मतलब कि कोई भी वेरिएशंस हो रहे हैं टर्म्स और कंडीशंस में और एक्सटेंट ऑफ चार्ज है एक्सेट्रा, तो वो रजिस्टर्ड होंगे सेक्शन 77 में। Section 80 पर येतं टीम नोटिस. डीम नोटिस includes 3 things: caution, alert, caveat emptor. Caveat emptor तो सबको पता है रे. Buyer must be beware. कंपनी नहीं बताएगी कि प्रॉपर्टी पे चार्ज है या नहीं. आउटसाइडर या बायर को पहले से पता होना चाहिए.